participants, we were waiting for a wonderful teacher, wonderful researcher, a very senior teacher from Aligarh Muslim University. We have with us for this session Professor Shah Mohammad Khan sir. Although he does not need any introduction, but because some of the participants are new, so as a formality, I would request sir to for 2 minutes only. Uh, Participants, Professor Shah Mohammad Khan sir is working as a professor in the Department of Psychology, Aligarh Muslim University, Aligarh. As far as sir's academics are concerned, sir has completed his MSc in Stats from Aligarh Muslim University in 1984. Sir has completed a MA Psychology from AMU in 1997, and sir did his PhD from University of Lucknow in 2003. Sir has the research experience of more than 3 decades, more than 30 years. Sir has the teaching experience of around 25 years. Sir has published very good papers, quality papers in various national and international journals. Around 70 research papers Sir has published on those journals. Sir has published psychological tests which we use in our researches, and students, scholars, teachers, everyone uses for their researches. Sir has contributed around 30 psychological tests, which is one of the real contribution in the field of education. Sir has presented around more than 30 research papers in different seminars and conferences. Sir has also written 2 books. Sir has guided PhDs regularly, and around 20 scholars have been awarded their PhDs under Sir's guidance and supervision, along with more than 30 dissertations at master's level. Sir has successfully worked as the project director of one major major project sponsored by ICSSR, given by ICSSR. Sir has also completed many research projects of Indian Railways when he was there as an officer of Indian Railways. Around 50 research projects Sir has completed there also. Many seminars and conferences Sir has organized as an organizing secretary, as director in many capacities. Sir is also the program coordinator of PG Diploma in Human Resource Management at Aligarh Muslim University, Aligarh. Sir is the member of many academic bodies, like life member of Academy of Applied Psychology, life member of Institute for Rail Transport, New Delhi, member of ranking of the university, and many other important bodies like member of Innovation Counseling, University Incubation Center, etc. As far as resource person is concerned, Divya madam, please be on mute board. Divya ma'am. Divya ma'am. Divya ma'am. Yes, thank you. So, ma'am, be very careful because we are having resource person right now. So, as far as his lectures, invited lectures in different colleges and universities are concerned, around 100 lectures as a resource person he has given. He has chaired many technical sessions. We cannot find even a single day when he is not giving lecture. He is not the resource person. He is such a busy person, a very talented and competent person in Aligarh Muslim University, Aligarh. Not only helping the research scholars of Department of Psychology, but whole university visits him for analysis and other help. Thank you very much, sirs. You have given us time. We know that how busy you are, especially in your research and helping the other research scholars. Sir will Accept. talk on one of the very important topics, that is research project management. Thank you once again. With these words, I बहुत would like to invite sir. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया सर. Friends, my gratitude to UGC HRDC, Dr. Faiza Abbasi, a very good friend of mine, Professor Jamal Saab, coordinator of the program, डॉक्टर मोहम्मद शाकिर साहब बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं. जैसा मेरे बारे में कहा, शायद it's time to test me, but my words to you, I will be at your expectations. वक्त बहुत कम है, बहुत ज़्यादा बातें करनी हैं. और जैसा डॉक्टर शाकिर ने कहा कि I was responsible for selection of safety categories staff over the Indian Railways. And whenever there is an accident, causes of human error in train operations. So 24 years I worked over there and left railways. I was officer, very prestigious position there. I left railway just because of the fact I love to teach. I love to be the part of academia.
Or 9 years back, I joined Aligarh University, Aligarh. My gratitude to the top management कि उन्होंने इस लायक समझा और मुझे इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बनाया. Okay, friends, let me share my talk. I hope my screen is visible. Can somebody confirm me? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. So friends, you are welcome in this session. The responsibility which has been given to me, it is about research project management. As a researcher, as an academician, we need to move on this journey. अगर हम research में बहुत अच्छे नहीं हैं, तो perhaps we are going to fail in days to come. दोनों चीजों को साथ ही साथ चलना होगा. In addition to, you must be equipped with the technology also. जितनी भी बातें मैं इस सेशन में करूंगा, and the most of the stages of the research project management are equipped with AI. अगर 2 मिनट के लिए भी आप स्क्रीन से अपनी नजर हटाएंगे तो ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ा नुकसान फील करेंगे. So I appeal to the participants, आपने वक्त दिया है, आप हमारे साथ हैं, and 90 मिनट्स के लिए पूरा दुनियादारी छोड़ दीजिए और आई होप बहुत ही वंडरफुल नॉलेज आप लेकर जाएंगे यहाँ से. फ्रेंड्स, अगर बात करें रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, देखिए स्लाइड्स आप देख सकते हैं. Managing the principles to the specific context of scientific inquiry, research. You are going to revisit the problem time and again. इसीलिए it has been labeled as research. When we are working on similar problems or such studies, it is a learning process. हम लोग सीखते हैं how to solve a research, how to solve a problem. It may be the real life side problems, or it may be the research problem, or it may be the academic problems. So need to pass on the different stages scientifically. And number of stages are there. It involves number of activities when you are trying to solve a problem. Planning, organizing, overseeing the task, and ensuring they meets the objective, your objective as well as the funding agency and employer objective. So this is the only slide which seems subjective in nature. It's just to sensitize you. Research project management. So number of stages we are going to learn in this session, and the first task is mind map, how to create it. The first AI application that I am going to share with you, अगर आप इसे देखें, मैं zoom करता हूं, the wonderful slide जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, देखिए, managing a research project. A number of activities or stages are there. आप देखें, planning. The first is planning. For the planning, you need to define the research questions, set clear objectives and hypotheses, literature review, very important to examine the gap, methodology, how you are going to move on the journey in the research. Methodology may be related to the qualitative or quantitative, different methods of the data collection, tools and techniques. Tools means if it is an experimental research study,
You may have equipments, or you have scales, or you can say the test. Budget, resources. Second activity is the resources. आपके पास बजट कितना है, आपकी टीम कैसी है, एंड इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल कितना है। ख्याल रहे, जब भी रिसर्च प्रॉब्लम आप अपने हाथ में लें, रिसर्च प्रोजेक्ट आप सबमिट करें, या अपने रिसर्च स्कॉलर को रिसर्च प्रॉब्लम दें, ये सारी बातें दिमाग में रखनी होंगी, एल्स यू आर गोइंग टू फेल इन डेज टू कम। थर्ड, data management, how you are going to collect the data, how you are going to store it, and data analysis. Project management, timeline is very important. You need to set the timeline. ये एक्टिविटी मुझे इतने हफ्ते या इतने मंथ्स के अंदर करने हैं। टास्क मैनेजमेंट, communication, there must be a clear communication between different stakeholders. Academics में हम देखते हैं कि we are having research advisory committee, we are having board of studies, we are having academic council as well, and funding agency also. Frequently we need to update them. Communication and risk management. अगर किसी स्टेज पे you are failing, then how you are going to cope with. Writing and reporting, wonderful applications. Drafting, referencing, presentation, number of times हमें presentation भी देना होता है. Publication and reflection and evaluation. Knowledge आपका हिस्सा नहीं बनना चाहिए. It must be shared. Ethical considerations when you are conducting research. Friends, इस स्लाइड पर सेंसिटाइज करने का रीजन ये है, यू माइट बी थिंकिंग फॉर इट कि इस माइंड मैप को बनाने में कितना वक्त लगा होगा। ट्रस्ट मी, एज ए टीचर, अगर इस तरह से आप अपनी क्लास या स्लाइड को प्रेजेंट कर रहे हैं बिफोर द ऑडियंस, यू आर गोइंग टू हैव ए डिफरेंट और अमेजिंग फीडबैक। अगर मैं इसी स्लाइड को कहूँ आपसे बनाने के लिए, somebody can help me, how much time will you like to take in making this slide? कुछ आप बात करें? Can anybody? 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 घंटे, 4 घंटे? Anybody? Sir, more than 15 days. आपने सही कहा, आपने सही कहा डॉक्टर साहब। और नहीं, the beauty, just look into it. It is not just making this schema. It is not just making this figure. The content has to be very, very reliable and valid as well. Different sources से आप content search करेंगे, फिर इस फिगर को बनाएंगे, then only you will be able to discuss this before the audience. लेकिन trust me, when you are going back to your workplace, this slide you can create within 2 minutes. ये हम सीखेंगे। देखिए, इसी क्लास में मैं स्विच ओवर करता हूँ हाउ टू क्रिएट दिस स्लाइड। मैंने कहा था ना, जैसे कि अगर 2 मिनट के लिए भी आप देखिए थोड़ा सा अटेंशन आपका डिस्टर्ब होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपसे हाथ से निकल जाएगी। अब नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट द माइंड मैप। माइंड मैप किसी भी स्टेज के लिए रिसर्च प्रोजेक्ट की आप बना सकते हैं। द फर्स्ट देखिए, यू नीड टू चैट जीपीटी में आप आइए। दिस इज द एआई एप्लीकेशन। मैंने चैट जीपी में देखिए लॉगिन किया और मैसेज प्रॉम्प्ट, आई नीड टू गिव द प्रॉम्प्ट। बहुत ध्यान से सुनेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये पीपीटी में आपसे शेयर करूंगा। अब देखिए, फर्स्ट प्रॉम्प्ट है, सजेस्ट मी माइंड मैप
to sum first one digit odd numbers. मैंने एक बहुत छोटा सा पॉइंट आपको दिया, suggest me mind map to sum first one digit odd numbers. देखिए प्रॉम्प्ट बहुत स्मार्ट होना चाहिए। एआई को यूज करने से पहले वो आपको जज करता है कि जिस तरह का क्वेश्चन है उसी तरह का आंसर होगा। तो इट हैज टू बी ग्रामेटिकली साउंड एंड नीड्स टू हैव द क्लियर फ्लो। सजेस्ट मी माइंड मैप टू सम फर्स्ट वन डिजिट ऑड नंबर्स। देखिए मैंने क्लिक कर दिया और इसके बाद देखिए मेरे लिए वो माइंड मैप बना रहा है। आप देखिए बन गया, पहला काम मेरा हो गया, उसने ये स्टेप्स दिए। अब देखिए दूसरा प्रॉम्प्ट मैं देता हूं, प्रोवाइड द सेम इन मार्क अप फॉर्मेट। ये नेक्स्ट कीवर्ड है, मार्क अप फॉर्मेट। प्रोवाइड द सेम इन मार्क अप फॉर्मेट। मैंने क्लिक किया, सबमिट किया, तो देखिए मार्क अप फॉर्मेट में ये मेरा कोड आ गया, उसने कोड लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए राइट टॉप कॉर्नर में देखिए कॉपी कोड, मैंने यहां से कॉपी कर लिया। इसके बाद नए वेब ब्राउजर में आइए और यहाँ पर देखिए मार्क मैप है। तीन चीजें हैं, तीन वर्ड्स हैं, माइंड मैप, मार्क अप और मार्क मैप। आप इसका एड्रेस देखिए, markmap.js.org। दिस इज द एड्रेस, देखिए markmap.js.org। अब यहां पर आ गए एंड यहां पे देखिए ट्राई इट आउट, आप इसे क्लिक करिए और ये लेफ्ट साइड में जो पेन है, ये लेफ्ट साइड में जो पेन है, इसको कंट्रोल ए करके आप डिलीट कर दीजिए। सारा डिलीट कर दिया, इस साइड में देखिए कुछ भी नहीं है। और वहां से जो कॉपी करके लाए कोड को जस्ट पेस्ट इट। देखिए आपका माइंड मैप बन गया, कितना ब्यूटीफुल। देखिए माइंड मैप, मैंने जो आपसे बात की थी ना कि लेस देन ए मिनट और लेस देन 2 मिनट्स, ये तो एक बहुत छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया। अब देखिए डाउनलोड एज इंटरेक्टिव HTML, आप इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर देखिए डाउनलोड हो गया और आप इसे ओपन करिए। देखिए कितना खूबसूरत आपके सामने माइंड मैप बना। सम ऑफ फर्स्ट वन डिजिट ऑड नंबर्स, पहले उसने वन डिजिट ऑड नंबर्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए। अब उसके बाद इंडिविजुअल कैलकुलेशंस की। देखिए 1 + 3, 4 + दिस एंड दिस, देख रहे हैं, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 5 + 7 and so on, and final sum is 25. Got it? This is HTML page. आप इसी पेज को इमेज में डाउनलोड कर सकते हैं और यू कैन डायरेक्टली प्लेस इट इनटू योर PPT, अपनी रिसर्च आर्टिकल में, अपनी थीसिस में, कोई भी वंडरफुल। मेरी तो बहुत सारी क्लासेस सिर्फ माइंड मैप बेस्ड होती हैं, क्योंकि इस पे हम घंटों बोल सकते हैं। जो पढ़ना और डिस्कस करना, यहाँ सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बहुत हैंडी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, और यहाँ से देखिए साइज इसका घटा बढ़ा सकते हैं, आप जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और आप इसको इमेज में भी फॉर्म सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो नॉलेज मैंने आपसे शेयर की थी, हाउ टू क्रिएट द माइंड मैप एनी ऑफ द प्रॉब्लम। रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी हो सकता है, वो प्लानिंग के लिए भी हो सकता है, डिजाइनिंग के लिए भी हो सकता है, गैदरिंग के लिए भी हो सकता है, एनालाइजिंग के लिए भी हो सकता है, रिपोर्टिंग के लिए भी हो सकता है। एनीथिंग एल्स यू प्लेस ओवर इट। अपनी क्लास तैयार कराने के लिए आप इससे कहिए कि देखिए कितने वंडरफुल आपको नॉलेज और मटेरियल आपको ट्रांसफर करेगा। फाइन फ्रेंड्स, तो फर्स्ट जो नॉलेज मैंने आपसे प्लान किया था, इट इज अबाउट दिस माइंड मैप।
अब इसी तरह से देखिए, ये मैंने सिर्फ लेस देन 2 मिनट्स में ये इतना बड़ा बनाया। पहली नॉलेज मैंने आपको ट्रांसफर की, हाउ टू क्रिएट द माइंड मैप। नाउ फ्रेंड्स, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। हर स्टेज को हम देखिए चेक करेंगे और हर स्टेज पर एआई का एक्सपोजर आप फील करेंगे। रिसर्च प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, research itself, project, second entity, and third is management. तीनों चीजों को एक साथ लेके चलना होगा। And it's important to carefully consider these aspects before embarking on any research project. हमारी रिसर्च इसीलिए फेल होती है कि we are not systematic, we are not orderly. We are afraid of putting things on a paper. हम लिस्ट करें और ऑर्डरली चीजों को लाएं। अब जैसे मैंने देखिए 12 स्टेजेस को आपके सामने रखा। सबसे पहले आता है कि whenever you are trying to submit a research proposal or searching a research problem for your student, the first is research problem identification. The research problem has to be contemporary. It has to be burning. It has a meaningful group of words. हमारे लिमिटेशन होते हैं। देखिए, आप देखेंगे जेमिनी गूगल की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एआई की, आप सभी लोग इसे यूज करते रहे होंगे। मैं क्लिक अप के बारे में आपसे बात करूंगा। वंडरफुल एप्लीकेशन। देखिए, फिर आप इसमें आइए और सिंपली राइट द क्लिक अप एआई। मैंने क्लिक किया और देखिए सेकंड वाला जो आपका लिंक है, ये मैंने क्लिक किया। ट्राई फॉर फ्री, देखिए यहाँ पे आएगा। बहुत सारे जितने भी एआई एप्लीकेशंस हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं एक रिसर्चर के लिए, लेकिन कॉमर्शियल और एडवांस वर्किंग के लिए यू नीड टू पे फॉर देम। बहुत ही मामूली सा चार्ज होता है, लेकिन व्हेन यू आर इंटरेस्टेड टू प्रोड्यूस द क्वालिटी रिसर्च पेपर और क्वालिटी रिसर्च प्रोजेक्ट, यू नीड टू पे लिटिल बिट। तो अब देखिए, ये मैं अपने जीमेल आईडी के साथ लॉगिन करूंगा। मैंने अपना मेल आईडी इसको बताया और मैंने लॉगिन कर लिया। देखिए, ये फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने आएगा। ये देख रहे हैं राइट साइड में बहुत सारी चीजें हैं। इस एआई एप्लीकेशन को लेके एटलीस्ट आई नीड 3 आवर्स टू डिस्कस विद यू। हर चीज है। देखिए, टाइम शीट है, डैशबोर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन है, एग्जाम्पल प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारी चीजें हैं इसी के अंदर। टाइमलाइन, एवरीथिंग इज देयर। अब देखिए, यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ। प्रॉम्प्ट देने में अगर देखिए मैं इससे ये कहूँ कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हैं आपसे थोड़ा टाइम सेव करने के लिए। जैसे देखिए, ये प्रॉम्प्ट अगर आप देखें, I am an undergraduate educator interested in developing a research proposal on stress management among undergraduate students. I plan to submit this proposal to a funding agency and would appreciate your assistance in preparing it. ये बात मैं AI से करने जा रहा हूं। लास्ट में देखिए, यूज योर ओन नॉलेज। ये देखिए बहुत ही क्वालिफाइंग वर्ड है। मैंने ये प्रॉम्प्ट फाइनल किया और देखिए मैं यहां पर आ रहा हूं जो अभी एआई एप्लीकेशन थी और उसमें प्रॉम्प्ट हम दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आस्क, एंटर किया और देखिए किस कदर चीजें आपके पास आएंगी। कंपाइलिंग योर, देखिए आपके लिए सिनॉप्सिस बन रही है, रिसर्च प्रपोजल कंप्लीट बन रहा है। देखिए, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव्स, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड आउटकम्स,
budget, timeline, conclusion and references. Less than a minute. अभी मुझसे सवाल ये नहीं कहिएगा कि सर इज इट इथिकली अलाउड और अनएथिकल, मैं इसका जवाब दूंगा। परहैप्स कई डजन्स प्रोग्राम में कर चुका हूं जनरेटिव एआई पे, एंड द पार्टिसिपेंट्स वर कन्विंस्ड टू द एक्सटेंट कि इट इज इथिकली अलाउड। अब देखिए मैं और उससे कह रहा हूं, अब यहाँ पे मैं इससे कह रहा हूं कि सजेस्ट कंटेम्परेरी research problem to study stress among undergraduate students। अब देखिए जब भी रिसर्च प्रॉब्लम आप प्रपोज करें, क्लैरिटी उसमें देखिए, वेरिएबल बहुत साफ साफ होना चाहिए किस वेरिएबल पे आप स्टडी करने जा रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए, stress cannot be same as postgraduate and research student comparing to undergraduates। बहुत क्लैरिटी के साथ लाइए। अब देखिए मैंने इसको एंटर किया और अब देखिए मेरे सामने टाइटल उसने दिया, द इम्पैक्ट ऑफ रिमोट लर्निंग ऑन स्ट्रेस लेवल अमंग अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट ड्यूरिंग एंड पोस्ट पैंडेमिक। अब देखिए आगे और देखिए क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट स्पेसिफिक स्ट्रेसर्स रिलेटेड टू रिमोट लर्निंग शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी, नंबर ऑफ स्पेसिफिक। अब देखिए मैं इसे कहूं ओसीडी, मैंने इसको दे दिया स्पेसिफिक। देखिए मेरी प्रॉब्लम को रिफाइन कर रहा है वो, the relationship between OCD symptoms and academic stress among undergraduate students। देखिए आगे और बढ़ेगा, what specific aspects of the OCD should be examined in relation to the academic stress, how can we measure the impact of OCD, intervention, different studies। आगे देखिए रिसर्च क्वेश्चंस मुझे सजेस्ट करिए आप इस प्रॉब्लम को लेके। देखिए रिसर्च क्वेश्चंस मेरे सामने उसने रख दिए, व्हाट इज द प्रिवलेंस ऑफ ओसीडी सिम्टम्स अमंग दिस रिसर्च क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च प्रॉब्लम आपने फाइनल कर दी, अब उसी से रिलेटेड सारी चीजें आपके पास देखिए आती चलेंगी। देखिए वंडरफुल ऑब्जेक्टिव्स, पॉइंट यहाँ पे है द टास्क विच इज रिपीटेटिव इन नेचर एंड मैनुअल इन नेचर, वो हम टेक्नोलॉजी से कराएं। डिसीजन मुझे लेना है कि देखिए इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव मेरे लिए रिलायबल एंड वैलिड है। और देखिए फॉलो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सजेस्ट मी द मेथोडोलॉजी, क्या रहेगी इस प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए। देखिए डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरवेंशन, एथिकल कंसिडरेशंस, एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ द स्टडी। हमें जरूरत है देखिए इस तरह के अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज को ट्रांसफर करने की। देखिए ऐसी चीजें आपके सामने आएंगी जो कि इम्पॉसिबल है इफ वी आर सिटिंग ईयर्स इन द लाइब्रेरी और ऑनलाइन, वो हम सब नहीं कर सकते जो यहाँ पॉसिबल है। लिटरेचर रिव्यू, देखिए मैं इससे कहता हूं मुझे लिटरेचर के बारे में भी कुछ बताइए। देखिए विद रेफरेंसेस, आप देखिए विद रेफरेंसेस, कैप्स इन द लिटरेचर भी आपको बता दिया उसने, सारी चीजें बता दी। और देखिए आप important research articles
जो गूगल में आप शायद मिलियंस ऑफ पेजेस में ये चीज नहीं कर पाते हैं, वो देखिए यहाँ विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ मिनट आप सारी चीज कर पा रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिसर्च आर्टिकल्स देखिए आपके पास सारे आ रहे हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सोचने की जरूरत है, और शायद you will be convinced at the end of this session, then only you will be able to produce wonderful result. जो लोग बहुत रिएक्टिव होते हैं इस नॉलेज के लिए, जो लोग अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं इज इट इथिकली अलाउड और नॉट अलाउड, उनके लिमिटेशंस हैं। दे आर नॉट हैप्पी विद द टेक्नोलॉजी, दे आर नॉट इक्विप्ड विद द टेक्नोलॉजी, दे आर एन ऑब्सलीट एंटिटी, मैं ये कहना चाहूंगा। डेवलप्ड वर्ल्ड में यू कैन नॉट इमेजिन कि एआई का एप्लीकेशन किस हद तक हो रहा है। माय डॉटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स फॉर इंडस्ट्री इन यूरोप। माय सन इज वर्किंग एज बिजनेस सीनियर बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर इन नीदरलैंड्स। मैं जब उनसे पूछता हूं कि बेटे किस हद तक एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दे यूज टू रिएक्ट कि पापा यू कैन नॉट इमेजिन के डिसीजन मेकिंग के लिए हम किस कदर यूज कर रहे हैं। इसीलिए वो डेवलप्ड हैं। हम अभी यहाँ इन्हीं चीजों में पढ़े हैं कि इथिकली और अनइथिकली, क्या सारी चीजें अभी तक जो हम करते आए हैं वो इथिकली थी। और टू लार्ज एक्सटेंट मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और दिखाऊंगा, दे आर प्लेगरिज्म फ्री। You can check it. मैंने चेक किया है नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, दे आर विद इन द एक्सेप्टेबल लिमिट, लेस देन 7% और 10%, समटाइम्स 0. That you need to equip with this technology. इसे क्लोज करूंगा फ्रेंड्स। मैं जरूरत है इस तरह की नॉलेज की, तो मैंने आपसे पहली दोनों बातें की, रिसर्च प्रॉब्लम, टाइटल। मैं दोबारा रिपीट कर सकता हूँ। एक और देखिए वंडरफुल एप्लीकेशन मैं आपसे डिस्कस करूं, ये साइट भी हो सकता है और कोहेर भी हो सकता है। साइट बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जो कि आपको मदद करेगी। देखिए स्टार्ट फ्री, आप गूगल के साथ लॉगिन कर सकते हैं अपना। हमने हमेशा ये ज्यादातर एप्लीकेशंस अलाउ करती हैं गूगल के साथ यूज करना। अब देखिए, ask a question, suggest me what is the relationship between laterality and accident proneness। ये इंडियन रेलवेज पर मैंने स्टडी की थी, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए वंडरफुल, लिटरैलिटी का मतलब है साइडेडनेस, लेफ्ट आइड, राइट, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट फुट, लेफ्ट हेमिस्फीयर, कौन सा हेमिस्फीयर डोमिनेंट है, कौन सा हैंड डोमिनेंट है, कौन सा फुट आपका डोमिनेंट है, कौन सी आई डोमिनेंट है, अकॉर्डिंगली व्हाट इज द रिलेशनशिप विद द एक्सटेंट प्रोनेस। आगे देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लेटरलिटी एंड एक्सटेंट प्रोनेस अमंग पॉपुलेशन, दे आई है लोको पायलट्स। देखिए मैंने क्वेश्चन उसको दे दिया। अब देखिए मेरे लिए वो रिजल्ट्स देखिए कितने वंडरफुल देगा। 38 रिजल्ट्स उसने देखिए क्रिएट किए हैं। वंडरफुल रिजल्ट्स देखिएगा। अलोंग विद द, ये देखिए उनके रेफरेंसेस। पहला नंबर देखिए, ये सारे साइड में रेफरेंसेस आ रहे हैं कि कहां से वो इंफॉर्मेशन ले रहा है। देखिए
अब यहां से देखिए किसी भी रिसर्च आर्टिकल को आप फुल टेक्स्ट देख सकते हैं, डैशबोर्ड में इंक्लूड कर सकते हैं, अपनी रिसर्च में साइट कर सकते हैं। यहां से माइक्रो लेवल पे आपको अपनी रिसर्च को लाने की जरूरत है, माइक्रो लेवल पे अपनी रिसर्च को। देखिए अगर यही काम आप लाइब्रेरी में बैठकर करें या मान लीजिए ऑनलाइन बैठकर करें, शायद पॉसिबल नहीं होगा। शेयर द आर्टिकल published by Shah Muhammad Khan, RDSO. RDSO is the only R&D organization of the Indian Railways, जहाँ पे मैं काम करता था। अब देखिए इससे मैंने सवाल पूछा, ये मुझे क्या जवाब देता है। और देखिए ब्रजभूषण IIT कानपुर, ये मेरे ऑथर थे, शायद इनके उससे देखिए कैप्चर करें, एक्टिवेट। मैंने बहुत इससे रिलेवेंट सीरियस बातें पूछ रहा हूँ, इसलिए इसको तकलीफ हो गई। कहने का मतलब है कि अपने लेवल पे यू कैन गो फॉर नंबर ऑफ such type of documentation, such type of research which is not possible in real time settings. लाइब्रेरी में बैठकर या ऑनलाइन बैठकर डिफरेंट सोर्सेज को नहीं हो सकती, जो कि आप यहाँ कर सकते हैं। Friends, so now we know how to identify the research problem and how to prepare the synopsis and research questions and objective. Different कोहेर बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है, मैं उसको भी देखिए आपके सामने शेयर करता हूँ, उसमें लिमिटेशन नहीं है। कोहेर देखिए अच्छी AI एप्लीकेशन आप लाइए, देखिए AI प्लेटफॉर्म। देखिए आप यहाँ पे मैसेज दीजिए, मैं कुछ जो मेरे पास बने हुए प्रॉम्प्ट हैं मैं उनको ले सकता हूँ। अब देखिए एक और रिसर्च प्रॉब्लम मैं इसके सामने रख रहा हूँ, मैंने दिया, देखिए मैसेज देखिए, टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया यूजेज ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स इन अर्बन एरियाज। ये मैंने इसके सामने रिसर्च प्रॉब्लम रखी। अब देखिए उसने सजेस्टेड स्टेप्स मुझे मेरे सामने रख दिए, जो कि मैं सिनॉप्सिस की आपसे बात कर रहा था। देखिए आइडेंटिफाई द रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च प्लान, आइडेंटिफाइड द रिसर्च को कहें रिसर्च क्वेश्चंस। हम ये अब एक एक पॉइंट को ले लेते हैं। सजेस्ट रिसर्च क्वेश्चंस। अब जो प्रॉब्लम इसकी मेमोरी में रहता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए उसने रिसर्च क्वेश्चन वो दे, सोशल मीडिया पे ये सारे रिसर्च क्वेश्चंस मेरे सामने रख दिए। मेथोडोलॉजी क्या होनी चाहिए, देखिए मिक्स मेथड अप्रोच आप अपना सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू कर सकते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए। किस तरह की रिसर्च डिजाइन आप प्रपोज करना चाह रहे हैं अपनी स्टडी में, हर एक का मेरिट एंड डिमेरिट आपके सामने होगी। फोकस ग्रुप, कोलैबोरेशन, एथिकल कंसिडरेशन, डेटा एनालिसिस, हर स्टेज आ गई। इसी में
रिसर्च गैप, इसी रिसर्च प्रॉब्लम पर देखिए आपको वो रिसर्च गैप भी सजेस्ट करेगा। देखिए कंटेम्परेरी, हमारा मकसद यही है कि वट एवर द रिसर्च वी आर गोइंग टू कंडक्ट, वट एवर द प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू डिस्कस, वो कंटेम्परेरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इट हैज बीन स्टडीड बाय समवन एल्स। एक यूनिवर्सिटी का केस मुझे याद आया, वन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम वाज असाइन्ड टू ए रिसर्च स्कॉलर। 2 साल तक वो बच्ची काम करती रही, 2 साल ऐसे ही सर्च कर रही थी। शी रियलाइज द सेम प्रॉब्लम has been studied by different scholar in an university। उसका हश क्या हुआ होगा आप सोचिए। 2 साल उसके लगने के बाद उसकी जिंदगी के मामलात क्या रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। we need to work on it, we need to। अब देखिए how to, इस और दे how to select sample size। अब देखिए वो आपको सैंपल सिलेक्ट करने के लिए, पार्टिसिपेंट प्लीज म्यूट कर लें। देखिए सैंपल साइज के लिए डिफाइन द पॉपुलेशन, डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आप 90 ले रहे हैं, 90% ले रहे हैं, 95% ले रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं। You need to declare before selecting the sample size। okay? थोड़ा देखिए उसने फॉर्मूला दे दिया, यहां से देखिए पूरा चीज देखिए। Determine the desired level of confidence, specify the margin of error, फॉर्मूला आपको उसने दे दिया। और कंसिडर रेस्पॉन्स रेट, ड्रॉप आउट कितना हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, सब्जेक्ट आपको अवेलेबल होना चाहिए डेटा कलेक्शन के लिए। पायलट टेस्टिंग करिए, पावर एनालिसिस करिए, एंड इथिकल कंसिडरेशन फॉर द रिसर्च। एग्जाम्पल देखिए उसने दिया। अक्सर फ्रेंड्स ये सवाल मुझसे किया जाता है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड हाउ मच सैंपल साइज इज सफिशिएंट फॉर ए स्टडी। If you are planning to ensure 95% of the confidence, then a sample size of 384 or say 400 is sufficient for infinite population। 400 से ज्यादा डेटा आपका नहीं होना चाहिए आपकी रिसर्च स्टडी में। उसने देखिए एग्जाम्पल करके आपके सामने दिखा दिया, सारी चीजें आपके सामने आ गई जो कि पॉसिबल नहीं है। किताब कितने नंबर ऑफ पेजेस आप लेंगे। अब देखिए यहां से इट विल नॉट माइंड, आपने मार्क किया और यहाँ से कॉपी करिए, आप इसे पीपीटी में ले जाइए चाहे वर्ड में ले जाइए, इट विल नॉट माइंड। एंड दिस डॉक्यूमेंट, दिस इंफॉर्मेशन इज प्लेगरिज्म फ्री। ये तो सारा लिटरेचर और थ्योरी का डोमेन है, कुछ भी नहीं है। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखिए इस रफ्तार के साथ आपको काम करना है इफ यू आर प्लानिंग टू मेक ए डिफरेंस इन डेज टू कम। तो फ्रेंड्स लिटरेचर रिव्यू में अब देखिए आते हैं। मैं इसी स्लाइड पे आपकी पे, हालांकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन और है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए माइंड में हाउ टू कंडक्ट ए रिसर्च, देखिए सारे स्टेप्स आ गए। माइंड मैप मैंने आप सिलेक्ट रिसर्च टॉपिक, लिटरेचर रिव्यू होना चाहिए, हाइपोथेसिस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएं, रिसर्च डिजाइन क्या होना चाहिए, डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, रिजल्ट्स का प्रेजेंटेशन विद इन 2 मिनट्स। मैंने प्रॉम्प्ट दिया था हाउ टू कंडक्ट ए रिसर्च। ये देखिए माइंड मैप मेरे पास बनकर आ गया। चूजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं, ये पीपीटी आपके साथ रहेगा या यू कैन गो थ्रू इट, ये मैंने डिस्कस आपसे किया। रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होने चाहिए, नो एम्बिग्विटी, स्पेसिफिक, रिलेवेंट होने चाहिए आपकी रिसर्च से और आपके इंस्टीट्यूशन और आपकी यूनिवर्सिटी का जो गोल एंड ऑब्जेक्टिव है। फिजिबिलिटी, number of issues are there, time, resources, budgets, data। एक रिसर्च स्कॉलर के एतबार से हर पॉइंट को आपको दिमाग में रखना होगा।
इंटरेस्ट। सबसे पहले आई यूज टू, जब भी आप रिसर्च स्कॉलर को कोई रिसर्च प्रॉब्लम दें स्टडी करने के लिए, तो उससे इंटरेस्ट पूछिएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है। इफ यू आर एबल टू सीक हिज और हर इंटरेस्ट, देन हाफ वर्क डन। मेरी इस प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहता हूँ, उसका रीजन ये है, मेरी फैमिली में, मेरी सोसाइटी में, मेरे इंस्टीट्यूशन में ऐसा हुआ था, या मेरे नेशन में मैं इस प्रॉब्लम को स्टडी करना चाहती हूँ। तो इंटरेस्ट क्या है? ओके, हायरार्किकल ऑर्डर में सारी इंफॉर्मेशन आपको रहना होगा। एम आपका ये रहेगा, रिसर्च क्वेश्चन ये रहेगा, ऑब्जेक्टिव ये रहेगा, गोल ये रहेगा, मेजर किया जा सके, टाइम बाउंड हो आपकी रिसर्च क्वेश्चंस, एंड कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये ना हो कि द फर्स्ट क्वेश्चन इज एड्रेसिंग ए डिफरेंट डोमेन एंड सब क्वेश्चन इज एड्रेसिंग ए डिफरेंट डोमेन। इट हैज टू बी कंसिस्टेंट इन नेचर। कोहरे को यूज करते हो, यू कैन प्रोड्यूस द रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो कि 1 साल के लिए हम टाइम देते हैं रिसर्च स्कॉलर्स को। फ्रेंड्स, मेरी नंबर ऑफ PhDs विद इन द मिनिमम टाइम अवार्ड हुई हैं। जब 2 साल था तो 2.25 साल के अंदर, जब 3 साल है तो 3.25 साल के अंदर। And all scholars are working either as a class 1 officer or as assistant professor or counselor. इस लेवल का देखिए नॉलेज आपको क्रिएट करनी होगी। मैं इस तरह से इक्विप करता हूं कि दे कैन रन विद द टेक्नोलॉजी। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू मैं आपको किस तरह से आसान करूंगा। बहुत सारी चीजें हैं लिटरेचर रिव्यू के बारे में। चैट डॉक एक AI एप्लीकेशन है और रिसर्च रैबिट भी है। वंडरफुल एप्लीकेशन है रिसर्च रैबिट, और चैट डॉक भी है। मैं दोनों के बारे में आपसे बात करूंगा। हम आते हैं, देखिए रिसर्च रैबिट को लेते हैं पहले। रैबिट बहुत वंडरफुल एप्लीकेशन है AI की, और बहुत ज्यादा यूज हो रही है रिसर्च में, और बहुत आसानी से आप इसे यूज कर सकते हैं। लॉगिन आप करेंगे, देखिए मैं लॉगिन हो गया। आप जीमेल के थ्रू लॉगिन करेंगे। फर्स्ट स्क्रीन आपका ये होगा। अब यहाँ पे देखिए न्यू कलेक्शन आप यहाँ दीजिए। यहाँ पे MMTTC मैंने नाम दे दिया अगस्त 2024। ये यहाँ पे कैटेगरी का आप नाम दे सकते हैं। इट मे बी रिलेटेड टू योर रिसर्च आर्टिकल, इट मे बी रिलेटेड टू योर रिसर्च प्रोजेक्ट, इट मे बी रिलेटेड टू योर यू कैन से द रिसर्च स्टडी। आपके स्कॉलर का नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको देखिए यहाँ पे दिया है मेरे स्कॉलर का नाम, और एंटर किया हमने। तो अब देखिए जो स्पेस है ये आपके लिए रिजर्व हो गया। अब यहाँ पे ऐड पेपर्स, लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, देखिए हम ऐड पेपर्स यहाँ पे ले आइए, और यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं, DOI भी दे सकते हैं, PM और कीवर्ड दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने शायद प्रॉम्प्ट कुछ रखा है, मैं आपको मैं इसको देखिए ये देता हूँ, लिटरेलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस, और यू कैन से द देखिए लिटरेलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस मैं इसे देता हूं, और ए स्टडी ऑफ लोको पायलट्स। मैंने सर्च किया, देखिए अब सर्च करेगा कि इसको नो रिजल्ट मिला। मैं और देखता हूं कहीं तो इसको मिजल और सब्जेक्ट्स में मैंने लिया, पहले बायोमेडिकल था। हम और इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे किया, दोबारा सर्च करते हैं। देखिए आर्टिकल मिल गया। देखिए लिटरेलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस,
ये हमारी स्टडी है जिसको भूषण IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं, ये मेरा है, हमने इसको स्टडी किया था। अब देखिए ऐड टू द कलेक्शन, अब ये सारे जो पेपर्स इसने आइडेंटिफाई किए हैं ये लेटरलिटी एंड एक्सीडेंट प्रोननेस के लिए हैं। और देखिए कब पब्लिश हुआ, जो आप वहां गूगल में बैठकर या दूसरे एप्लीकेशंस को यूज करके शायद हफ्तों और महीनों में कर पाते थे, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो गया। अब देखिए ऐड टू द कलेक्शन, मैंने इसको एंटर किया और 1 पेपर हैज बीन एडेड। अब मैं यहाँ क्लोज कर देता हूं, तो देखिए ये वाला मेरा रिसर्च आर्टिकल यहाँ पे ऐड हो गया। अब देखिए कि ये जो मेरा रिसर्च आर्टिकल है, इस तरह के 927 रिसर्च आर्टिकल्स और भी हैं, नॉट एग्जैक्टली द सेम सेंटेंस, इन डोमिनेंट वेरिएबल्स को यूज करके इस तरह के हैं। रेफरेंसेस देखिए 42 जगह मेरे रिसर्च आर्टिकल को रेफर किया गया। साइटेशंस 20 मिले हैं। इस रिसर्च आर्टिकल्स के ऑथर्स 2 हैं। अब देखिए मैं इसे अगर क्लिक करूं, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो देखिए इस आर्टिकल का एब्स्ट्रैक्ट आ गया। और यहां पे अगर आप जाएं, देखिए सिमिलर वर्क, आप इसे क्लिक करिए तो सारे रिसर्च आर्टिकल्स यहां पर आ जाते हैं 927। देखिए माइक्रो लेवल पे आपको अपनी रिसर्च को लाना है और जो भी आपको रिलेवेंट लगता है आप उसे क्लिक करिए, वो आपका कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। ओके, रेफरेंसेस देखिए इस आर्टिकल को कितने लोगों ने रेफर किया, ये 42 लोगों ने रेफर किया। देखिए भूषण हम लोग आ रहे हैं, देखिए हमसे सारे लिंकेजेस आ रहे हैं कि किसने कहां कैसे यूज किया। टाइमलाइन के नेटवर्क है ये, और टाइमलाइन देखिए किसी ईयर में 2006 में हमारा आर्टिकल पब्लिश हुआ था, 2000 में इसको रेफर किया गया, 94, 90 वगैरह वगैरह। अब देखिए किस हद तक लिंकेजेस आ रहा है। नेटवर्क देखिए, आप किसी भी आर्टिकल पे चले जाइए, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा। देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया, इन्होंने इसका PDF भी है, आप PDF डाउनलोड करके रख लीजिए। देखिए इजीली अवेलेबल है PDF आपके लिए। देखिए पूरा आर्टिकल आ गया, देखिए एब्स्ट्रैक्ट आ गया। यू कैन गो फॉर सीकिंग द परमिशन टू डाउनलोड दिस आर्टिकल वगैरह वगैरह। लेकिन दे आर ऑफ द ओपिनियन कि इसका PDF अवेलेबल है, आप इसे क्लिक करिए, बाय दिस सब्सक्राइब लॉगिन वगैरह वगैरह। कहने का मतलब ये है कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे यूज करने की आपको रिसर्च में। साइटेशंस देखिए इस आर्टिकल के कितने लोगों ने साइट किया, ये हमारे का नहीं है जो हमने क्लिक किया था। तो इस तरह से यू कैन गो फॉर दीज ऑथर्स। देखिए अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन आपके पास चलती चली जाएगी रिसर्च के लेवल में। तो यहाँ इस तरह से आपको जाने की जरूरत है, अपनी रिसर्च को पढ़ने की जरूरत है, and you will be able to present yourself as a wonderful researcher. चैट डॉक जो मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए उसके बारे में भी देखते हैं चैट डॉक क्या कह रहा है। विद डॉक्यूमेंट्स वंडरफुल, देखिए ट्राई फॉर फ्री। कंटिन्यू मेरा रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या है, नॉर्मली क्या होता है हमारे केस में कि हम अपने स्कॉलर को नंबर ऑफ टाइम्स जिम्मेदारी देते हैं, कहते हैं कि रिसर्च आर्टिकल देते हैं, इसको पढ़ कर आओ, शायद हम अपनी जिम्मेदारी उसे ट्रांसफर कर देते हैं, एंड वी विल डिस्कस। अब एक रिसर्च आर्टिकल में देखिए पढ़ने के लिए क्या होता है, एक रिसर्च आर्टिकल में पढ़ने के लिए क्या होता है। देखिए ये वाला आर्टिकल था जो मैं आपसे बात कर रहा था, लेटरलिटी 2006। ये पूरा आर्टिकल देखिए यहाँ पे अपलोड कर लिया उसने। अपलोड करने के बाद अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप इससे पूछिए। देखिए यहाँ पे टाइप ए क्वेश्चन, अब इससे पूछिए मेन फाइंडिंग्स क्या हैं इस रिसर्च आर्टिकल की, मेन फाइंडिंग्स,
एंटर कर दीजिए और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर देखिए आपके पास ये 6 मेन फाइंडिंग्स इस रिसर्च आर्टिकल की आ गई। रिसर्च क्वेश्चंस क्या थे इस रिसर्च आर्टिकल के, टाइप करिए। आपके सामने देखिए रिसर्च क्वेश्चंस, हम ये लोग 3-4 क्वेश्चंस लेके चले थे। मेथोडोलॉजी क्या थी इस रिसर्च आर्टिकल की, 1 घंटे के अंदर आपका स्कॉलर आपके पास आएगा कि साहब मैंने पढ़ लिया रिसर्च आर्टिकल, अब बताइए क्या सवाल का जवाब देना है। देखिए मेथोडोलॉजी आ गई, हमने 80 ड्राइवर्स पे ये स्टडी की थी। लिटरलाइजेशन कोफिशिएंट हमने कंप्यूट किया था, फाइन। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू, रीड एन आर्टिकल, देखिए सारी चीजें इसके अंदर आ गई इस आर्टिकल से रिलेटेड। देखिए इंपॉर्टेंट पेपर्स और यू कैन से द आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं जो इस आर्टिकल में एड्रेस किए गए हैं। देखिए M.K. मंडल साहब DIPR के डायरेक्टर जनरल थे, ये उनके साथ मेरा पहला काम हुआ था। देखिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ गए। ऑथर्स के बारे में बताइए जो इस रिसर्च आर्टिकल्स के हैं। देखिए आप देखिए IIT कानपुर से ब्रजभूषण साहब थे और मैं रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ से मैं था। रिसर्च गैप देखिए, अब फर्दर डायरेक्शन आपको मिलेगा। अब देखिए उसमें रिसर्च गैप बता दिया कि इससे आगे रिसर्च आप इस तरह से शुरू करिए। जो काम एक 10 या 12 पेजेस का रिसर्च आर्टिकल होता है उसमें पढ़ने की चीजें क्या होती हैं, लेकिन we need to assure the motivation of the scholar, पढ़ने वाली चीजें पढ़ी जाएं। अब यहाँ टेक्नोलॉजी के थ्रू आप इसे इस्तेमाल करिए और सैलिएंट फीचर ऑफ द आर्टिकल आप पढ़िए और अपना नॉलेज बेस को आप इनरिच करिए जिससे कि यू कैन मूव ऑन। आपका वक्त, आपका टाइम बहुत इनोवेटिव और इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज के लिए अवेलेबल होना चाहिए। ये ना हो कि बस इसी तरह से ट्रेडिशनल वे में आप पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं और ऐसे ही काम चल रहा है। नो। सजेशन फॉर फ्यूचर रिसर्च, देखिए मत चाहिए उस पर नंबर ऑफ पेजेस मत पलटिए, आप यहां से कहिए। देखिए हमने ये केबिन डिजाइन इम्पैक्ट पे भी हमने ध्यान दिया था, अदर वेरिएबल्स को शामिल करने की, कल्चरल कंसिडरेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। एक रिसर्च आर्टिकल को आधा घंटे के अंदर आपने पढ़ लिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स इस तरह से रिसर्च या रिसर्च प्रोजेक्ट को मैनेज करने की जरूरत है जो मैं आपसे इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूँ। रिसोर्सेज, आप देखिए लाइब्रेरी रिसोर्सेज आपके पास कैसी है, ऑनलाइन डेटाबेस आपके पास कैसा है, ज़ोटेरो एंड मेंडले वगैरह रिसर्च टूल्स भी बहुत ज़रूरी हैं कि जो रिसर्च आर्टिकल आप पढ़ रहे हैं उनको किस तरह से आप इंडेक्सिंग करेंगे। और ये ग्रामरली एंड प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर्स वगैरह ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं, हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में सारी इंफॉर्मेशन है। whatever the document we are going to submit, it has to be go through the library, वहाँ चेक होने के बाद निकलेगा। रिसर्च फंडिंग्स, डेटा कलेक्शन मेथड आपके पास किस तरह का है, एंड डेटा एनालिसिस आप किस तरह से करेंगे। फाइन। कोलैबोरेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑनलाइन कोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स ऑल्सो, ये भी देखिए बहुत वंडरफुल टूल्स हैं। फाइन। सो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, ये वाली स्लाइड मैं स्किप करूंगा। जब भी स्टैटिस्टिक्स की बात आती है कि कौन सी एनालिसिस हमें करनी चाहिए,
तो इन 3 क्वेश्चंस का जवाब दीजिए। देखिए, डिसीजन अबाउट स्टैटिस्टिकल टेस्ट एनालिसिस के लिए व्हाट टाइप ऑफ डेटा डू यू हैव, वेदर इट इज कैटेगोरिकल और क्वांटिटेटिव। हाउ मेनी सैंपल्स डू यू हैव, 1 सैंपल, 2 सैंपल्स, 2 सैंपल्स इंडिपेंडेंट हैं या रिलेटेड हैं, एंड मोर देन 2 सैंपल्स। और व्हाट इज द टेस्ट सपोज टू डू। फ्रेंड्स, रिसर्च में सिर्फ ये 2 ही काम करते हैं, या तो हम कंपेयर करते हैं डेटा को या ट्राई टू सीक द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ये काम करते हैं। और इन तीनों क्वेश्चंस को देखिए एक साथ आया, तो देखिए ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में आपको पता चल गया कि कौन सा टेस्ट आपको यूज करना है। फाइन, ये स्लाइड फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लखनऊ के प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हमने और उन्होंने काम किया था। सारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट आपको इस स्लाइड में मिल जाते हैं। देखिए, कंपैरिजन ऑफ वन ग्रुप टू हाइपोथेटिकल वैल्यू, RI का मतलब रेशो और इंटरवल, ऑर्डिनल एंड नॉमिनल। अगर आपका डेटा रेशो और इंटरवल पर है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यू विल गो फॉर 1 सैंपल टी टेस्ट। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो देन यू विल गो फॉर विल्कॉक्सन टेस्ट। इसी तरह से 2 ग्रुप्स को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, अनपेयर्ड ग्रुप्स हैं, डेटा आपका रेशियो और इंटरवल पर है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यू विल गो फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो देन यू विल गो मैन विथ मीन टेस्ट। इसी तरह से फ्रेंड्स सारी चीज स्टैटिस्टिक्स देखिए यहाँ आ जाती है। कंपैरिजन, अगर देखिए आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, देखिए कंपैरिजन ऑफ मेजरिंग द रिलेशनशिप, यहाँ पे देखिए ये वाला सीन देखिए, अगर डेटा आपका रेशो और इंटरवल पर है और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है देन यू विल गो फॉर पियर्सन कोरिलेशन। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो देन यू विल गो फॉर स्पीयर रैंक कोरिलेशन एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स इस तरह की नॉलेज की जरूरत है। इस स्लाइड को आप प्रिंट करके रख लीजिए, सारी एडवांस स्टैटिस्टिक्स तक इसमें शामिल हो जाती है। अब फ्रेंड्स आती है कि यू हैव नंबर ऑफ स्टेजेस नाउ। आपने प्लान कर लिया, डिजाइन कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू गो फॉर एनालिसिस। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द डेटा एनालिसिस। देखिए ये जेमोवी थर्ड जनरेशन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एप्लीकेशन है। इट इज फ्रीली अवेलेबल, स्टैटिस्टिक्स ओपन फॉर ऑल। आपको SPSS को या किसी भी कॉमर्शियल सॉफ्टवेयर को जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे डाउनलोड करिए, अपने स्कॉलर्स को बताइए और वंडरफुल एनालिसिस आप कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। जेमूवी आप इंस्टॉल कर लीजिए और लाइफ टाइम की इसकी वैलिडिटी है। जेमूवी देखिए मैंने रन किया, हमारे लिमिटेशन होते हैं कि साहब हमारे पास SPSS नहीं है, हम डेटा एनालाइज नहीं कर सकते। सारी चीजें देखिए खुद आप कर सकते हैं। अपने स्कॉलर्स को इस तरह से तैयार करिए, देखिए बिल्कुल SPSS की तरह से आपको फीलिंग आएगी। ये देखिए स्प्रेडशीट है टू एंटर द डेटा। ए को डबल क्लिक कर लीजिए तो यहाँ वेरिएबल का नाम है, जैसे सब्जेक्ट ID। मेजर टाइप वो नॉमिनल है, ऑर्डिनल है या कंटिन्यूअस है, जैसे SPSS में सिलेक्ट करते हैं। फाइन, यहाँ लेवल उसका दे, तो यहाँ पे देखिए मैंने डेटा एंटर किया 1 2 3 4 5 डेटा मैंने एंटर कर दिए। अब बी में आइए, बी का देखिए मैंने इसको जेंडर नॉमिनल है, नॉमिनल के साथ जाएंगे। देखिए 1 1 2 1 2 ये डेटा मैंने एंटर कर दिया। थर्ड में आइए सी, मैंने एज ले लिया। ये डेटा मैंने एंटर कर दिया। अब देखिए न्यू डेटा वेरिएबल और एड ऑन करना चाहते हैं आप क्लिक करिए, कंप्यूट करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, सारी चीजें अवेलेबल हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी मुझे कंप्यूट करनी है, फ्रीक्वेंसीज में आइए और 2 आउटकम देखिए बिल्कुल SPSS की तरह से। जेंडर की फ्रीक्वेंसी देखिए मैं लेना चाह रहा हूं, देखिए 1 वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स आई है, 2 टाइम्स आई है, 60% एंड 40%, सारी चीजें आ गई।
इसी तरह से आप इसे वापस आइए, एक्सप्लोर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखिए एज की आप लेना चाह रहे हैं, आप ये ले लिया आपने, देखिए ये नीचे आ गया। 5 सब्जेक्ट्स हैं, मीन की वैल्यू, मीडियन की वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम मैक्सिमम। बाय जेंडर अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए ये आ गए सबकी स्टैटिस्टिक्स, ये आ गई। अगर एक यू मे लाइक टू चेंज दिस जेंडर, 1 का क्या मतलब है, तो आप देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 1 के आगे लिख दीजिए फीमेल, जैसे एसपीएसएस में होता है, और 2 के आगे लिख दीजिए मेल। देखिए आपका डेटा इस तरह से आ गया। और आप इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखिए, एज बाय जेंडर, देखिए फीमेल 3 है, मेल 2 हैं। मीन देखिए, फीमेल का मीन ये है, मेल का ये आ गया। मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। ये आउटपुट है आपका। आप यहाँ क्लिक करिए और यहाँ से कॉपी करके आप सीधे वर्ड में पेस्ट कर दीजिए या एक्सपोर्ट कर सकते हैं जैसे एसपीएसएस में करते थे। आप इसको एनालिसिस के लिए यूज करिए। यू कैन डायरेक्टली एंटर डेटा ओवर हियर, लेकिन अगर देखिए ऑलरेडी डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ से ओपन करिए और ब्राउज करिए। देखिए ब्राउज करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे देखिए इतने तरह के डेटा को ये पढ़ सकता है। जेमोवी का डेटा, सीएसवी डेटा, एक्सेल का डेटा, एसपीएसएस का, आर का, स्टेटा का, सेस का, जेस्प, हर तरह का डेटा पढ़ सकता है आपका। टेक्स्ट फाइल सब पढ़ सकता है। तो देखिए एक बड़ी डेटा फाइल में ओपन कर रहा हूँ, एसपीएसएस की ये फाइल है। देखिए एम्प्लॉय डेटा, देखिए ये पूरा डेटा आ गया, 474 का डेटा। डिफरेंट वेरिएबल्स देखिए, आप एनालिसिस के लिए यूज करिए। अब देखिए टी टेस्ट मुझे एग्जामिन करना है, इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट। तो देखिए करंट सैलरी बाय जेंडर, देखिए ये टी की वैल्यू आ गई, ये डीएफ आ गया, n-2, 474 का डेटा था, दिस इज पी वैल्यू। और देखिए जस्ट क्लिक अवे, मीन डिफरेंस, देखिए मीन डिफरेंस आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यू देखिए ये आ गई, देखिए आ गए। इफेक्ट साइज जो कि एसपीएसएस कंप्यूट नहीं करता है, देखिए इफेक्ट साइज भी आपका हो गया। डिस्क्रिप्टिव्स देखिए, ये फीमेल एंड मेल की अलग अलग आ गई। एंड प्लॉट्स देखिए, मीन प्लॉट देखिए। अजम्पशंस देखिए, यहाँ पे देखिए अजम्पशंस देखिए, होमोजीनिटी टेस्ट, नॉर्मलिटी टेस्ट, क्यूक्यू प्लॉट, सारी चीजें आपके पास हैं, सारा आउटपुट आपके पास है। आप कॉपी करिए, पेस्ट करिए। इसी तरह से यू कैन गो फॉर पेयर टी टेस्ट, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस तमाम तरह का है। रिग्रेशन देखिए, कोरिलेशन मैट्रिक्स देखिए, सैलरी एंड बिगिनिंग सैलरी, देखिए दिस इज द कोरिलेशन बिटवीन द टू। फ्लैग सिग्निफिकेंट लेवल, देखिए स्टार भी आ गया, ट्रिपल स्टार भी आ गया। कॉन्फिडेंस इंटरवल, सारी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है। Regression, you can develop the linear regression, you can go for reliability analysis करने की जरूरत है। वक्त की लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। सारी स्टैटिस्टिक्स आप यहाँ पे करिए। इस वाले डेटा में भी पॉसिबल नहीं है, लेट मी चेक इट अनदर डेटा। अगर वक्त की लिमिटेशन है, बहुत सारी चीजें और भी मुझे आपसे डिस्कस करनी है। ये एम्प्लॉय रिटेंशन का डेटा है। देखिए मैं आपके साथ इसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस करना चाहता हूँ। देखिए 5 पॉइंट स्केल का डेटा था, आप यहाँ पे आइए, रिलायबिलिटी एनालिसिस लीजिए, और ये 21 आइटम्स थे इसमें, इस स्केल में एम्प्लॉय रिटेंशन के लिए। देखिए 0.52 की रिलायबिलिटी, इट इज नॉट ए गुड रिलायबिलिटी। इसको कैसे देखिए, हम कैसे देख सकते हैं विच आइटम इज मिसबिहेविंग। कई बार इसी स्टेज पे सारे प्रोजेक्ट और रिसर्च फेल हो जाती है। लेस देन 0.80 इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए आइटम स्टैटिस्टिक्स, क्रोनबेक अल्फा इफ आइटम डिलीटेड, हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए 21 आइटम्स की पूरी स्टैटिस्टिक्स आ गई।
अगर इस आइटम को आप स्केल में से डिलीट करते हैं तो यू आर नॉट गेनिंग कुछ भी। अब इसी तरह से नीचे देखते चले जाइए, यहाँ पे आइए, अब देखिए JS5 में, JS5 को अगर डिलीट कर देते हैं तो योर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट विल बी 0.86। अब देखिए JS5 को आप यहां से हटाइए, हम इस तरह से डेवलप करते हैं अपने स्केल को, हमने हटा दिया। अब देखिए सारे आइटम्स की रिलायबिलिटी देखिए, सब की 0.85 के आसपास है। सॉरी, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप लोग अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं इस नॉलेज को। दिस इज द नॉलेज दैट यू नीड टू, इस लेवल की नॉलेज की जरूरत है। अब देखिए हर आइटम की रिलायबिलिटी 0.85 के आसपास है। बस मेरा काम हो गया। सारी स्टैटिस्टिक और भी बहुत सारी, सबसे खूबसूरत जो चीज देखिए इस जेमोवी की लगती है, हीट मैप मैट्रिक्स, जो कि SPSS क्रिएट नहीं करता है। हीट मैप का मतलब क्या है? आइटम का आइटम टोटल के साथ कोरिलेशन, आइटम का आइटम के साथ कोरिलेशन, ऐसे आइटम्स जिनका कोरिलेशन कोफिशिएंट देखिए रेड वाले डोमेन में है या लाइट है, वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। इस मैट्रिक्स को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आइटम मिसबिहेव कर रहा है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। जेमोबी, you can go for factor analysis, you can go for PCA, you can go for EFA। देखिए ये देखिए फैक्टर एनालिसिस, देखिए आप वही 21 आइटम्स में से हम अब JS5 को हटा देंगे। JS5 को हटा दिया, देखिए देखिए ये एजम्पशंस दोनों आ गए, शॉर्ट लोडिंग्स ये आ गया, फैक्टर। अब देखिए कितना ब्यूटीफुल, देखिए AC का मतलब है एटीट्यूड टुवर्ड्स कोवर्कर, जो आइटम AC के थे वो सब एक साथ आ गए। स्टेइंग इंटेंशन, दिस इज नोन एज डेटा रिडक्शन टेक्निक, EFA, 2 मिनट के अंदर आप सीख रहे हैं। इन्वायरमेंटल परसेप्शन एक साथ आ गए, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एक साथ आ गए, जॉब सेटिस्फेक्शन एक साथ आ गए। ये पांचों सब डायमेंशंस अगर कंफर्म हो रहे हैं तो हम एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़कर जाएगा? एटीट्यूड टुवर्ड्स कोवर्कर, स्टेइंग इंटेंशन, इन्वायरमेंटल परसेप्शन, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। समरी देखिए, तीनों फैक्टर देखिए, ये समरी है। पहला फैक्टर इतना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा इतना, एंड ओवरऑल 61.4% ऑफ द वेरिएंस you are explaining into the employee retention using this scale। सारी चीजें आप बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस लेवल की नॉलेज की जरूरत है। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, आप सभी कर सकते हैं, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू इग्नाइट यू कि अपने स्कॉलर को इस तरह से तैयार करिए जिससे कि वो एक वंडरफुल रिसर्च इन डेज टू कम प्रोड्यूस कर सकें। एक्सपर्टीज देखिए, सब्जेक्ट मैटर नॉलेज रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, रिसर्च के लिए, एनालिसिस के बारे में मैंने डिस्कस किया, ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए आपसे। भाषणी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है और आप अगर इसे यूज करते हैं, फ्रीली अवेलेबल है, बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे और इसकी ब्यूटी देखिए कि किस कदर भाषणी देखिए यहाँ पे आया, ये मोबाइल फोन के लिए भी अवेलेबल एप्लीकेशन है। मुझे अपडेट नहीं करना है यार, मुझे काम करने दो, इतना वक्त नहीं है मेरे पास।
तो इसमें क्या है, देखिए डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं टेक्स्ट। मुझे अपडेट नहीं करना है यार, इतना वक्त नहीं है। आप इसे यूज करिए, बहुत ही इस वक्त मेरे पास, मैं इसे अपडेट करने की हालत में नहीं हूँ। देखिए इंग्लिश से हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करना है, मैं आपको एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। जैसे यही वाला हम ले लेते हैं। जैसे देखिए मैंने एक रिसर्च, एक प्रॉम्प्ट मैं देता हूँ इसको। यही वाला मैंने देखिए प्रॉम्प्ट लिया। स्टार्ट, यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट टाइपिंग और पेस्ट इट, ट्रांसलेट। वो फंसा हुआ है ना अपडेट करने में। एक्चुअली अपडेट कर रहा है ना वो, तो इसलिए आप इसे यूज करिए। दिस इज वेरी वंडरफुल यूटिलिटी। थोड़ा सा ये किसी भी लैंग्वेज में थोड़ा सा आप देख रहे हैं वो, मैं इसे यूज किया है, मैंने बहुत किया है। यू कैन हैव द कन्वर्सेशन। आप यहाँ पे माइक ऑन किया है। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर एस एम खान एंड आई एम डिस्कसिंग विद यू हाउ टू यूज द भाषणी। अब देखिए वो रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड क्योंकि इस वक्त अपडेट कर रहा है, इसलिए मैं आपके सामने शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इसको नहीं लाना चाहिए था। बहुत ही वंडरफुल एप्लीकेशन है। तो ये वाली एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करिए। इसमें क्या है कि मैनी टाइम्स आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में यू विश टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट एंड कन्वर्सेशन ऑल्सो। जैसे चैट होता है कि मान लीजिए आपका फ्रेंड मलयालम है, मलयालम में स्पीक करता है, तो आप हिंदी में बोल रहे हैं, यू आर टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी, और वो ट्रांसलेट करके ऑटोमेटिकली मलयालम में उसको कम्युनिकेट कर रहा है। तो इस तरह से बहुत ही ये एआई एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जो कि बहुत ज्यादा अपील यूज में आ रही है फॉर द गवर्नमेंट सेटअप एंड फॉर द रिसर्च एज वेल। ओके फ्रेंड्स, मेथडोलॉजी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च के लिए। टाइप ऑफ रिसर्च किस तरह की रहेगी, रिसर्च डिजाइन आपकी क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग, पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज आप किस तरह से सिलेक्ट करेंगे अपनी स्टडी के लिए, डेटा एनालिसिस मैंने आपसे डिस्कस किया, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एथिकल कंसिडरेशंस। सर्वे मंकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन है और बहुत ज्यादा रिसर्च में यूज हो रही है। सर्वे मंकी को आप यूज करिए। देखिए मैं विद इन फ्यू मिनट्स, ज्यादा देर का वक्त नहीं है। सर्वे मंकी मैंने क्लिक किया और इसको चलाया, और गूगल के साथ मुझे लॉगिन करना है। मेरा मेल आईडी इसने लिया एंड क्रिएट सर्वे। ओके, स्टार्ट फ्रॉम
आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, और भी यू कैन गिव योर प्रॉम्प्ट ऑल्सो, यू कैन राइट योर प्रॉम्प्ट। अब जैसे देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया कि एम्प्लॉय रिटेंशन पे 10 क्वेश्चन मेरे लिए बनाइए। ये देखिए 10 क्वेश्चन उसने बना दिए मेरे लिए विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। डन। प्रीव्यू अगेन, ये हो गया। कॉपी दिस सर्वे, अब देखिए आपका क्वेश्चनर बन रहा है, यहाँ पे लोगो आपने डाल दिया, आपने इसको एडिट कर सकते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए, ब्यूटी इसकी क्या है कि आपने क्वेश्चन को एडिट कर सकते हैं और लॉजिक बेस्ड इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं, देखिए रिक्वायर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हर आइटम को इसी तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड ऐड टू द कोलैबोरेटर्स, देखिए आप इसे डिफरेंट सोर्सेज को आप भेज सकते हैं, थीम, करंट प्लान। एंड इसी के साथ देखिए यहाँ पे अब क्लाउड में आप आइए, हर क्वेश्चन के बारे में ये सारी चीजें आपके पास बहुत सारी यहाँ देखिए थीम्स भी हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं अपने। देखिए कलर चेंज हो गया, फाइन। तो अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं करने की, लेकिन यू मस्ट बी रेडी टू वर्क फॉर। आप इसे स्क्रैच से तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चंस इंपोर्ट कर सकते हैं, टेम्पलेट से ले सकते हैं, फाइन। अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं। मैंने बहुत सारे देखिए हैप्पीनेस पे स्केल बनाया, देखिए कलर वगैरह सारी चीज देखिए, कॉपी किया, कॉपी दिस सर्वे, कॉपी हो गया। एंड यू कैन डायरेक्टली गो टू द वर्ड एज वेल, आप यहाँ पे लाइए और देखिए वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऐड टू द कोलैबोरेटर्स, देखिए सर्वे एडिटर्स, कोलैबोरेटर्स, एक्सपोर्ट टू शेयर मोर, व्यू मोर डिटेल्स। तो एक एडवांस लेवल का काम करने के लिए यू नीड टू थिंक फॉर दिस लिटिल बिट, लेकिन बेसिक लेवल पे काम करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसके बाद फ्रेंड्स सर्वे मंकी, देन वी नीड some more application. Timeline is very important. Gantt चार्ट, जब भी रिसर्च प्रोजेक्ट को आप अपने हाथ में लें तो देखिए एआई एप्लीकेशन के थ्रू ये Gantt चार्ट बना है कि ये एक्टिविटी आप कब शुरू करेंगे, कब एंड करेंगे, हाउ मेनी डेज यू आर गोइंग टू फिनिश, दिस इज टास्क नंबर 1, और इस तरह से आपका चार्ट बनता चला जाएगा। दिस इज macro also available online also, you can download it and this can work for you. Orderliness and systematic approach is very important for the researcher. अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आपके हाथ से चीजें निकलती चली जाएंगी। चैलेंजेस अपने समझिए बराबर, फंडिंग एजेंसीज के क्या इशू हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे करेंगे, स्टेक होल्डर्स एंड इम्पैक्ट आपकी रिसर्च का क्या होगा, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, दैट यू नीड टू एड्रेस इट। स्टेक होल्डर्स को किस तरह से आप सेटिस्फाई करेंगे, उनको किस तरह से अकाउंटेबिलिटी उनके लिए अपनी और उनकी फिक्स करेंगे। पब्लिकेशन होना चाहिए फ्रेंड्स आपकी रिसर्च या रिसर्च प्रोजेक्ट का, ऐसा ना हो वो ये नॉलेज आप ही तक रह जाए। इट नीड टू बी शेयर्ड विद द एकेडमिया, जिससे कि उनको पता चले कि इस फील्ड में कितना काम हो रहा है। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज हैं बेइंतहा, जहाँ पे देखिए बेइंतहा रिसर्च आपको मिल जाएगी, पीएचडीज डिपार्टमेंट वाइज कितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स स्टडी हुए हैं। यहाँ पे देखिए कितनी सारी ई लाइब्रेरीज हैं, अपने स्कॉलर्स को बताइए, ई रिसोर्सेज हैं, डेटाबेसेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे शेयर करिए कि अगर कुछ और स्पेसिफिक देखना है। शोध गंगा, ये आर्टिकल बहुत अच्छा है रिपोजिटरीज को लेके। एक
हिंदुस्तानी पब्लिश है ना जिन्होंने बनाया है, ये बताता है कि कहाँ पे हम अगर किस तरह का हम रिसर्च प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं और उसके लिए इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिलेगी। अब देखिए आईआईटी कानपुर का एड्रेस दिया गया है, थीसिस, डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किस फील्ड में कितना काम हुआ है, दैट यू नीड टू थिंक फॉर इट। बस कंक्लूड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और ये लास्ट स्लाइड जो मैंने आपसे वादा किया था कि हाउ टू क्रिएट द माइंड मैप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और ये पीपीटी कंप्लीट आपको शेयर किया जाएगा, जिससे कि यू कैन वर्क इन ए वंडरफुल वे बिफोर द स्टूडेंट्स, बिफोर द ऑडियंस, जिससे कि आपके बारे में एक मैसेज बहुत डिफरेंट जाए। देखिए मैंने 3-4 स्टेप्स थे, आपने चैट जीपीटी आए, वहां पे ये आपने प्रॉम्प्ट टाइप किया था, फिर मार्कअप फॉर्मेट में गए थे, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लिंक, markmap.js. You can create a very wonderful mind map. So thank you so much friends. Let me close the session and I'm hoping for your questions and जी अब आप अपने माइक अनम्यूट कर लें, और जिस स्टेज पर भी लग रहा है कि I need to address, so I can address your questions, please. Thank you so much, sir. It is very informative. But we are not familiar with all these applications. So if you will share that particular list of the apps of AI, then we can go through the for our research work. श्योर दीपिका जी, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पीपीटी आपको अवेलेबल रहेगा, और सारे एआईज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है कि किस स्टेज पे कौन सी एआई को आप यूज करेंगे। Yes, sir. वी नीड टू स्टार्ट इट। अगर इसे यूज नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप बहुत फेलिंग विच। Yes, sir. Yes, sir. और Thank you so much, sir. और बताएं सर, एनी अदर क्वेश्चन? Assalamualaikum, sir. Assalamualaikum, sir. जी मैम। Sir, it was really very much informative, sir. Actually, I have one question that is regarding that Survey Monkey. In that, sir, in free version, how many questions we can, survey questions we can prepare at a time, sir? Only 10? आप एक और इंटरेस्टिंग देखिए, हम जेमिनी को लाते हैं, वहां तो देखिए बहुत सारी चीजें हैं, वो 10 क्वेश्चंस एक साथ में बना देगा, फिर 10 क्वेश्चन करके 30 बना लीजिए। आप जेमिनी में आइए, देखिए वंडरफुल, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे देखिए प्रिपेयर 30 क्वेश्चंस ऑन हैप्पीनेस अमंग एडल्ट्स। ठीक है, responses on a 5-point scale with 3 negative scoring items। अब देखिए ये मैंने इतनी सी बात लिखी है, ये प्रॉम्प्ट मैंने जेमिनी में दिया। जेमिनी गूगल का एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन। प्रिपेयर 30 क्वेश्चंस ऑन हैप्पीनेस अमंग एडल्ट्स, रेस्पॉन्सेज ऑन ए 5-point स्केल, इवन कि 3 यहाँ पे ला सकते हैं हम। 30 क्वेश्चंस विथ 3 negative scoring items on happiness among adults, responses on a 5-point scale। अब देखिएगा आप, मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूं, एजुकेशन वाले इस प्रोग्राम को करा रहे हैं, आप देखेंगे वंडरफुल। और ट्रस्ट मी, देखिए 15 क्वेश्चन देखिए, इसकी लैंग्वेज देखिए। I am generally satisfied with my life. I feel optimistic about the future, 5-point scale। और नेगेटिव आइटम्स देखिए, I often feel bored or uninterested in life,
I find it difficult to enjoy things. I frequently feel lonely or isolated. फिर पॉजिटिव आइटम्स आ गए. तो इस तरह से देखिए यू कैन डेवलप इट. और अगर ये बात आप कर रहे हैं कि साहब ये चीज कुछ थोड़ा सा, मैं आपको एक स्केल में दिखाता हूँ. एक स्केल हमने डेवलप किया है अभी, ये हमारा इस पे काम चल रहा है. ये स्केल देखिए फैमिली क्लाइमेट पे डेवलप किया गया, हमने लिखा है. और इसकी मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाह रहा हूं कि अगर शायद यहाँ पे रिपोर्ट होनी चाहिए. दिस पीडीएफ कुछ है, यही है शायद. नहीं, ये भी नहीं है. देर नो प्लेगरिज्म, यानी 0 प्लेगरिज्म थी उस केस में. और देखिए हर आइटम को एक्सेप्ट हमें करना है. आइटम को एक्सेप्ट, देखिए प्लेगरिज्म रिपोर्ट है. देखिए ये वाला, देखिए ये मैंने स्केल सबमिट किया था प्लेगरिज्म के लिए, और इसकी रिपोर्ट देखिए. ये हमारे यहाँ का सेंट्रलाइज प्लेगरिज्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इंटरनेट यूनिवर्सिटी का. मेरा पॉइंट ये ओरिजिनलिटी रिपोर्ट, ये इथिकली अलाउड है. एक भी आइटम आपका प्लेगरिज्म, मेरा पॉइंट ये है कि आइटम लिखने में बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज आपको लगाने की जरूरत नहीं है. दिस इज मोनोटोनस टास्क. इसके आगे बहुत सारी आपको इनोवेटिव एक्टिविटीज करनी है. हमारे लैंग्वेज के लिमिटेशन है, हमारे बहुत सारे लिमिटेशन है. अगर इसी स्टेज पे हमने अपने को जाया कर दिया तो फिर तो बेकार है, फिर हम नहीं कर पाएंगे आगे. तो डॉक्टर साहब आपका जो पॉइंट था, there are many applications and they can help you to write the items for your scale and you can move ahead. डॉक्टर समीना बताइए, मैं आपको जवाब दे पाया? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir. और बताएं प्लीज. Good afternoon, sir. सलीम साहब बताएं सर प्लीज. सलीम Sir, I साहब. have a question. जी. सर आपने जो बताया था ना, मैंने एआई पे जो रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए जो प्रॉम्प्ट किया है, सो द क्वेश्चन अबाउट दैट, सपोज आई एम गिविंग ए प्रॉम्प्ट एंड सेम थिंग्स can be given by the other participant also, other students also, but the question is that project would be unique or it may be, or it should be distinct. डॉक्टर साहब ये ट्राई करिए, आप अच्छे एकेडमिशियन है. एज फार एज माय नॉलेज इज कंसर्न, not necessarily every time you are going to have the same outcome. रीजनरेट करने से आप देखेंगे कि जो प्रॉम्प्ट आपने दिया डेस्टिनेशन पे दूसरे स्कोरर ने दिया, द आउटकम विल बी द डिफरेंट. और एक और ब्यूटी है इसमें, देखिए अगर यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट प्रॉम्प्ट दिया था, यूज योर नॉलेज, आप यहाँ पे हर बार वो आपको बहुत ही डिफरेंट चीजें देगा. आप देखिए अपनी नॉलेज को प्रोवाइड करते हुए जो आइटम्स आपको देगा वो कहीं भी किसी भी तरह से आपको किसी सिमिलरिटी वाले दायरे में नहीं आएंगे. ठीक है डॉक्टर साहब. सालिम Okay, sir, साहब. I will try. Okay, sir. Sir, one more और request. देखिए और दूसरा पॉइंट ये है कि यू नो कि thousands of scholars are registered yearly, or you can say millions yearly over the globe. जरूरी नहीं है कि सेम प्रॉब्लम दो लोगों की हो जाए वन पॉइंट ऑफ टाइम. कहीं ना कहीं वेरिएबल्स का सिलेक्शन डिफरेंट होगा, पॉपुलेशन डिफरेंट होगी, रिसर्च डिजाइन डिफरेंट होगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. मुझे तो अभी तक नहीं, मेरे ख्याल से 3 decades प्लस में मैंने तो महसूस नहीं किया सर. सलीम सर. ओके सर, थैंक यू. एक्चुअली सर कभी मैंने यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने एक ऐसे सर क्वेश्चन आप पूछा इसे है. यूज करिए और आई विल शेयर द पीपीटी एज वेल. I need to, any other question, I need to finish it. Some another speaker will be there to help you. Thank you, sir. Thank you. Perhaps as I narrated with you, I will be at your expectation. I tried to be at your expectations. Now it is you to decide how to use this knowledge, wonderful knowledge. So any other question? Let me close the session now, sir. Do I?
HRDC. Thank you so much. Stay blessed. Thank you. Thank you, sir.